हेलो विनर्स, डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम के इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सेगमेंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, यही है सभी के लिए बहुत ही मुश्किल सेगमेंट, जिसको कि करना इतना आसान नहीं होता बहुत ही कम टाइम में। लेकिन दोस्तों, आपकी जो लिसनिंग स्किल कमाल की जो आपके पास है और कंसंट्रेशन स्किल, इसी की वजह से आप इस सेगमेंट को बहुत ही कम टाइम में कर सकते हैं। जी हाँ। अब दोस्तों, इसको शुरू करने से पहले हम आप सभी लोगों को आपकी ढेर सारी दुआओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे। इसके अलावा जो आपकी दुआएं हैं वो हमें कहीं ना कहीं इसलिए प्रेरित करती हैं कि हम अपनी प्रतिभाओं का उपयोग समाज को कुछ यूनिक देने के लिए कर सकें। और आपका जो सपोर्ट है, इसके लिए हम आपको धन्यवाद कहेंगे, क्योंकि ये सपोर्ट हमारे कंटेंट्स को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में मददगार साबित होता है। ज्यादा से ज्यादा लोग उन्हें सुनते हैं, सराहते हैं और उनका उपयोग अपने जीवन में करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम ये क्विज सेगमेंट। लिखा हुआ है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड देन आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ठीक है? हाँ, इसमें इंफॉर्मेशन को लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज नहीं करना है। बिल्कुल सही फरमाया आप सभी लोगों ने। देखिए, इट इज वेल नोन दैट अ चाइल्ड लर्न्स टू वॉक, टू टॉक एंड टू नो हिज वे अराउंड द वर्ल्ड just by trying something out and seeing what happens, then modifying what he does or thinks in accordance with what has actually happened. In this way, he spends his first few years in a wonderfully creative way, discovering all sorts of things that are new to him, and this leads people to look back on childhood as a kind of lost paradise. As the child grows older, learning takes on a narrower meaning. He accumulates knowledge to please others. He learns then for some utilitarian purpose and not mainly for the love of the action of learning itself. So, his ability to see something new and original gradually dies away. And without it, there is evidently no ground from which anything can grow. Evidently, then, the ability to learn something new is based on the general state of mind of a human being. It do not depend on special talents, nor does it operate only in special fields. But when it does operate, there is an undivided and total interest in what one is doing. Only this kind of wholehearted interest will give the mind the energy needed to see what is new and different, especially when the latter seems to threaten what is familiar, precious, secure, or otherwise dear to us. It is clear that all the great scientists and artists had such a feeling for their work, but no matter what his occupation may be, anyone can in principle approach life in this way. Here I am reminded of Annie Sullivan, who was the teacher of Helen Keller. When she came to teach this child who was visually challenged and deaf from an early age, she met a wild animal. She worked with the child as best as she could, with all the energies at her disposal, remaining extremely sensitively observant, feeling out the unknown mind of the child, and
eventual learning how to communicate with her. The key step here was to teach the child to form a concept which she had never learned because she had not been able to communicate with other people to any significant extent. This was done by causing her to come in contact with water in a wide variety of different forms and contexts, each time scratching the word water on the palm of her hand. For a long time, the child did not grasp what it was all about. But suddenly she realized that all these different experiences referred to one word, one substance in its many aspects, which was symbolized by the word water scratched in her palm. This initiated a fantastic revolution in the whole of her mind, the depth and scope of which we find hard to appreciate without having experienced directly what it means to live without conceptual abstraction. ठीक है, क्लियर? अब चलिए क्वेश्चंस पे चलते हैं. पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर्स आर्ग्यूमेंट्स, which statement sheds light on why a child is in a more creative state of mind? ठीक है, चाइल्ड बहुत ज्यादा क्रिएटिव स्टेट ऑफ माइंड में क्यों होता है? चाइल्ड के माइंड की स्थिति जो होती है वो बहुत ज्यादा क्रिएटिव होती है, ऐसा क्यों है? किस स्टेटमेंट के कारण बोला है? ठीक है, तो आंसर है, नॉलेज एक्विजिशन ऑफ द चाइल्ड इज नॉट अ मियर क्यूमुलेटिव प्रोसेस. Knowledge acquisition of the child is not a mere accumulative process. देखो, चाइल्ड केवल नॉलेज इसलिए गेन नहीं करता है क्योंकि वो एक प्रोसेस है, क्यूमुलेटिव प्रोसेस है ना. किसी पर्पस के लिए नॉलेज गेन नहीं करता चाइल्ड. वो अपने माइंड से किसी भी तरीके का नॉलेज गेन कर लेता है, अपने माइंड को एक्सप्लोरेशन वाली दिशा में ले जाता है ना, अलग अलग चीजें इन्वेंट करने वाली दिशा में ले जाता है. उसका ये पर्पस नहीं होता कि इसलिए हमें नॉलेज लेना है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, द एक्सपीरियंस ऑफ हेलन डिस्क्राइब्ड अबव कैन बेस्ट बी समराइज्ड बाय. किस वर्ड से समराइज किया जा सकता है हेलन वाले एक्सपीरियंस को? आंसर है रेविलेशन. ठीक है, रेवोल्यूशन, रेवलेशन एक तरह की चीज देख लीजिए आप. ठीक है, समझ में आ जाएगा बिल्कुल. नेक्स्ट, विच इज नॉट अ नेसेसरी स्टेप इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्सेप्ट एज डिस्क्राइब अबव. आंसर है, डिसाइफरिंग द मल्टीपल इंफॉर्मेशन कंटेंट इन अ सिग्नल. ठीक है, मल्टीपल बहुत सारी इंफॉर्मेशन कंटेंट को सिग्नल में डाल दिया जाए वो जरूरी नहीं है. बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको दे दी जाए ये कंसेप्ट फॉर्मेशन के लिए जरूरी चीज नहीं है. नेक्स्ट देखिए, विच डज नॉट नेसेसरीली फॉलो फ्रॉम द अबव पैसेज. आंसर है, क्रिएटिव एंगेजमेंट्स आर नॉट ऑफन सबवर्सिव. ये जो स्टेटमेंट है ये वाला जो है नेसेसरी नहीं है. नेक्स्ट, choose the sentence which is grammatically incorrect. ठीक है, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट सेंटेंस चुनना है आपको. ऑप्शन ए है, इट डू नॉट डिपेंड ऑन स्पेशल टैलेंट्स नॉर डज इट ऑपरेट ओनली इन स्पेशल फील्ड्स. ऑप्शन बी देख लीजिए, ही accumulates knowledge to please others. ऑप्शन सी, so his ability to see something new and original gradually dies away. कौन सा सेंटेंस ऐसा है जो इनकरेक्ट है?
वेरी गुड, सेंटेंस ए है। इट डू नॉट कभी नहीं लिखते हैं, इट के साथ हमेशा डज लगता है। ही, शी, इट, ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ डू नहीं लगता, डज लगता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द मोस्ट सिमिलर वर्ड ऑफ एक्यूमुलेशन? विच इज द मोस्ट सिमिलर वर्ड ऑफ एक्यूमुलेट या एक्यूमुलेशन? देखिए, एक्यूमुलेशन आएगा तो आप लिख सकते हैं एक्विजिशन, या एक्यूमुलेट आएगा तो आप लिख सकते हैं एक्वायर। ठीक है, एक्वायर, ACQUIRE। नेक्स्ट देखिए, विच इज द मोस्ट सिमिलर वर्ड ऑफ एविडेंटली? एविडेंटली का सिमिलर वर्ड लिखना है। वेरी गुड, डाउटलेस, डाउटलेस। ठीक है, एविडेंट मतलब अगर आप कोई भी चीज कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं, ठीक है, क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कुछ तो प्रमाण आपके पास होगा, इसलिए बोल रहे हैं। विदाउट लूजिंग कॉन्फिडेंस, ठीक है, तो यहां पे हो गया डाउटलेस, किसी भी प्रकार का डाउट आपके स्टेटमेंट में नहीं है। यही है तो यही सही है। ठीक है, अगर किसी ने बोला कि 6 और 6 120 होता है, तो आपने बोला कि नहीं जी, 6 और 6 12 होता है, 120 कभी नहीं होता है। तो उसने बोला नहीं, आप कैसे कह सकते हो, प्रमाण दो। आपने कहा कि लो हम प्रमाण देते हैं। आपने एक हाथ में 6 गोटियां ली कैरम बोर्ड की, दूसरे हाथ में भी 6 गोटियां ली। कहीं देख लो मेरे हाथ में 6 गोटियां, एक हाथ में 6 हैं, दूसरे हाथ में भी 6 गोटियां हैं, अब इनको हम मिला देते हैं, आप ही गिन लो खुद। तो कहेगा हाँ यार ये सही कह रहा है, ये बिना किसी डाउट के कह रहा है ना। तो ये एविडेंटली का होगा डाउटलेस। नेक्स्ट है, विच इज द मोस्ट सिमिलर वर्ड ऑफ ऑब्जर्वेंट? ऑब्जर्वेंट का सिमिलर वर्ड, अरे वाह, अलर्ट। ठीक है, जो ऑब्जर्व करता है वो बहुत ज्यादा अलर्ट होता है ना, हर बार बहुत अलर्ट होता है ताकि उससे कोई भी घटना मिस ना हो जाए। नेक्स्ट, विच इज द मोस्ट अपोजिट वर्ड फॉर पैराडाइज? पैराडाइज का अपोजिट वर्ड क्या है? जस्ट अपोजिट, एबिस, ABYSS, एबिस। और लास्ट क्वेश्चन है, विच इज द अपोजिट वर्ड ऑफ यूटिलिटेरियन? आंसर है क्विक्सोटिक, QUIXOTIC, क्विक्सोटिक। ठीक है, तो दोस्तों ये थे इंग्लिश सेगमेंट के कुछ क्वेश्चंस, और ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपने बहुत ही वंडरफुली सॉल्व किया है, और पूरा 10 के 10 स्कोर आपने ले लिया है। लेकिन दोस्तों इससे पहले कि हम ये सेगमेंट खत्म करें, हम आप सभी लोगों को एक बात कहना चाहते हैं, आप सभी लोगों से एक चीज लेना चाहते हैं, वो है आपकी ढेर सारे सफलता का बहुत बड़ा गिफ्ट, और आपके जीवन में आने वाली खुशियों का बहुत बड़ा गिफ्ट। ठीक है, ये हमें आप जरूर दीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों हम आप सभी के ढेर सारे प्यार, जुनून, जज्बात और कड़ी मेहनत के साथ साथ आप सभी की उस कोशिश को भी दिल से सलाम करना चाहेंगे, जिसकी बदौलत ना सिर्फ आप सभी नई नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, बल्कि साथ ही आप सभी हर क्षेत्र में अपनी योग्यता का झंडा निरंतर गाड़ रहे हैं। तो दोस्तों इसी बात के साथ और इसी गर्व की भावना को अपने मन में संजोए हुए एक बार फिर पूरी डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम की ओर से हम आप सभी को कहना चाहेंगे दिल से प्यार भरा नमस्कार।